Now, when this whole excitement and hype around Kia Sonet has settled, most of the enthusiasts who were waiting for this car, they've either bought the car or booked it already. अब बचे हैं वो customers who are deciding, who want to understand कि Sonet लें या Nexon लें, features, price and engine options के हिसाब से कौन सा better option होगा. And in case you are one of those customers who's looking at one subcompact SUV and still thinking कि Sonet लें या Nexon लें, then this video is for you and you've tuned into the right channel. Thanks for subscribing to Times Drive's YouTube channel. In case you haven't, we are going to play one montage, and by that time you can just click on the subscribe and like button, and please share it with your friends also. So let's start this story. Go. Nice, nice. Let's talk about the looks first, and that is a department where both of them, personally for me, they're very close, very, very close. And if you look at the Sonet, it has that elegant, stylish look. Tiger nose grille is obviously attractive enough. Similarly, Nexon, right from the day one when it was launched, I always liked the way it looked, especially that side strip and front. It has this sporty feel. So if I want to use one word for Nexon, ये मुझे sporty ज़्यादा लगती है, Sonet मुझे elegant ज़्यादा लगती है, but look के हिसाब से I guess जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, it is subjective. You let us know which one you like the most और comment section में बताइए. If your decision is based just upon the looks, तो कौन सी आप लेंगे इन दोनों में से? And now when you commented कि कौन सी आपको better लग रही है look के हिसाब से, मैं इसको भगाता हूँ. थोड़ा फन पार्ट में जाते हैं. सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी और फीचर्स की लिस्ट के बारे में तो हम बात करेंगे ही, सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, बट चलाने में कौन सी ज़्यादा मज़ेदार है, डे टू डे ड्राइव किसकी ज़्यादा एक्साइटिंग फन होने वाली है. वेल, लेट्स फाइंड इट आउट. सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सोनेट्स ड्राइव. और उसमें सबसे पहले देखते हैं कि उसमें 0 to एक्साइटमेंट लेवल कैसा है. आई एम रेडी. 3, 2, 1 and go. Nice, nice. So the red line is at 4,500 RPM. Manual होने की वजह से you can control it better. The acceleration is good, excitement is good, and I think being a small SUV, this feels like a small, sporty car, not like sports car, but yeah, it is pretty sporty. Exciting, and in case you're a driving enthusiast, I think you are going to like this combination. And now let's talk about the ride quality of this car and ride quality of Sonet. I was anyway impressed. जब last video आपने शायद देखा हो when we had driven the diesel automatic, जो segment में उस time में हमको बताया गया कि किस तरह से यूनिक है. और so यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि reverse camera resolution is very good, so I can take a U-turn आराम से, even in this narrow lane, which is actually closed, बाद में पता चला. और coming back to the ride quality, यहाँ मुझे ride quality काफ़ी अच्छी लगी. Engine condition के हिसाब से very balanced. It is firm, so while taking sharp turns या थोड़े से fast corners के ऊपर ये काफ़ी planted रहती है. And at the same time, it is not very stiff, not very rigid. So एक अचानक जो अभी स्पीड ब्रेकर आ गया जिसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ था, pretty usual, which is very unsafe. वहाँ पर जिस तरीके से इसका बिहेवियर रहा है, या इवन जो ब्रोकन रोड्स के ऊपर जो हैंडलिंग रहती है इसकी, वो बता दिया कि काफ़ी बैलेंस्ड है इंडियन कंडीशन के हिसाब से इसके सस्पेंशन सेटअप भी. सो ओवरऑल राइड क्वालिटी इज़ कंफर्टेबल येट फर्म and it gives you confidence. So that is something which is, I would say, segment में सबसे best में से एक ज़रूर मैं इसे ride quality को कहूँगा. So guys, let's talk about the features which we get in this Kia Sonet, the Tech Line version, because if you remember, last video was the GT Line version which I drove, and it had few extra features. This Tech Line, obviously this is a different line, so it comes with a different setup and feature wise. And the first thing which I looked for was the wireless charger, क्योंकि हाल में ही मैंने अपना फ़ोन चेंज किया. Now it has that wireless charging capability, but वो मुझे इसमें देखने को नहीं मिलेगा. This is also a manual version जो आप देख चुके होंगे, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ.
एंड नाउ लुक एट द इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें जो टैको है, फ्यूल गेज और जो इंजन टेम्परेचर है वो सब आपको एनालॉग मिलेगा बीच में, लेकिन स्क्रीन आपको 4.2 इंच का एक डिजिटल मिलेगा. देन द स्पीडो इज़ ऑल्सो डिजिटल. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट बहुत बड़ा प्लस नॉर्थ इंडियन कंडीशन में डे टू डे ड्राइविंग के लिए, डे टू डे लिविंग के लिए विद दिस कार, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में ढूंढ रहे हैं. और वो उस हिसाब से मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगती है. सामान रखने के लिए बड़े बॉटल रखने के लिए जगह आपको मिलेगी. अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पर मिलेगा. और ओवरऑल it feels spacious, especially because of this off-white I guess treatment, plus एक बड़ा sunroof भी आपको यहाँ पर मिल रहा है. So guys, overall I feel that the list of features are long. बहुत सारे functional, useful features हैं, and at the same time some of them look really cool. और वो conversation starters भी हैं, और आप बता सकते हैं, थोड़ा बोझ कर सकते हैं, this is what my car has. प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी स्पेस आपको सामान रखने के लिए बहुत सारे हैं. कप होल्डर्स सामान रखने के लिए, आगे भी जगह है, प्लस बॉटल्स वगैरह भी रखने के लिए है. नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए स्पेशली जो हीट है वहाँ के हिसाब से वेंटिलेटेड सीट्स तो बहुत ज़्यादा फंक्शनल, काफ़ी यूज़फुल फीचर्स मुझे लगते हैं. एंड देन एज आई सेड, बाकी जो लिस्ट है वो भी हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं. And I want to talk about one more comment which I got on the previous video which we did. It said that I forgot to mention or describe the headroom on driver's seat, which is less. So I don't think that is less at all, because I'm almost 6'3", and I've adjusted the seat according to my driving position, which I generally do, and I still have some headroom left. और आज तो मैं spikes भी बना के आया हूँ. So I think for average Indian height, this space is not very broad, but overall spacious, and I don't think it's uncomfortable at all. Even the headroom, I don't think it is less for tall drivers as well. So Kranti Sambhav reporting from the second row of Kia Sonet, and in case you read my review, this is the Achilles heels अगर हम बात करें Sonet एज अ वॉरियर की, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट ये ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम सेकेंड रो स्पेस जो है दैट इज़ समथिंग विच दे कुड हैव डन बेटर. वहाँ पर नी रूम, लेग रूम, फुट मूवमेंट के लिए काफ़ी जगह है. थाई सपोर्ट ओके कहूँगा. नी रूम थोड़ी सी कम आपको लग सकती है, आई मीन स्पेशली अगर आप टॉल हैं तो. बैक एंगल कंफर्टेबल ठीक है. हेड रूम मुझे थोड़ा सा कम पहले भी लगा था, तो ये जो स्पेस है आई गेस थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी. अदरवाइज जो बाकी स्पेशियस और काफ़ी एयरी जो फील है इस सोनेट में उसके मुकाबले, दो लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल ये मैं सीट कहूँगा. थर्ड पैसेंजर के लिए अगर वो एवरेज हाइट से थोड़े छोटे हैं, मे बी किड्स, आई गेस ये जगह आपको कंफर्टेबल 3 लोगों के लिए तब हो सकती है. 2.5 लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल आई वुड से. सो यहाँ मोबाइल फ़ोन रखने की जगह है, एक चार्जिंग पॉइंट आपको दिया गया है, एसी वेंट्स आपको दिए हैं, प्लस एयर प्योरीफायर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, बॉटल होल्डर दोनों साइड, प्लस फ्लैप्स हैं जहाँ पर आप फोल्डर्स, मैगजीन्स वगैरह रख सकते हैं. ओवरऑल आई फील फीचर के हिसाब से, फंक्शनलिटी के हिसाब से, अगेन if your family is not very big and your family members are not as tall as me, then this space is comfortable. So day to day living के लिए ये spacious जगह आपको तब लगेगी. Guys, Kranti Sambhav reporting from the Tata Nexon's driver seat, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि एक्साइटमेंट लेवल इसका कैसा है. और आवाज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी सोनेट के मुकाबले, वाइब्रेशंस हल्के से ज़्यादा आपको महसूस होंगे, बट एनीवे वो सारी बातें बाद में. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन फर्स्ट. आई एम रेडी. चलें 3, 2, 1. ओके, एक्सेलरेशन आप दबाइए. इट विल टेक सम टाइम, आई मीन इट्स नॉट वेरी क्रिस्प, बट आगे देखते हैं. ओके, 3, 2, 1 एंड गो. Wow, I like this torque. Nice. Okay. Nice. Superb. So guys, initial acceleration में मुझे सोनेट थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी, बट मिड रेंज में आके नेक्सॉन मुझे काफ़ी ताबड़तोड़ लग रही है. I really like it and you will enjoy it.
सो द रेड लाइन इज़ अराउंड 4000 RPM और वहाँ उसके नीचे जो इसका परफॉर्मेंस है आई एम रियली लाइकिंग इट. तो इनिशियल आई वुड से सोनेट गेट्स 10 बट बाकी मिड रेंज में टॉप स्पीड अभी जो दिख रही थी, ऑब्वियसली मैं लीगल लिमिट में ही कर रहा था इसे, सो वहाँ पे मुझे नेक्सॉन का परफॉर्मेंस काफ़ी एक्साइटिंग लगा. एंड अगेन रोड में मैं यू टर्न ले रहा हूँ, प्रीटी नारो लेन. कैमरा रेजोल्यूशन आई गेस सोनेट में आपको बेटर मिलेगा. इट्स नॉट so clean, it's not so clear, but yeah, it's nice. And now let's talk about the ride quality of Nexon. That also has very similar traits as far as suspension setup is concerned. Pretty firm and uneven surfaces. You get this confidence and comfort in this Nexon. So I would say ride quality wise, again, they are pretty close. But the engine refinement and steering behavior, I guess Sonet थोड़ी सी बेटर रिफाइंड मुझे लगती है. So guys, let's talk about the list of features in Nexon. And interestingly, the car which came for the shoot, usme we had this wireless charger attached and AI purifier. So I guess list of features में Sonet और Nexon अब तो बराबर नज़र आ रही है with these accessories. But यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, बैठते ही मुझे काफ़ी स्पोर्टी फील ये हो रही है और हमेशा से आई हैव लाइक द वे नेक्सॉन लुक्स. द डिज़ाइन एलिमेंट्स और जो स्टाइलिंग है वो मुझे काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी न्यू एज लगते हैं. दिस लुक्स प्रीटी स्पोर्टी एंड मॉडर्न. और ये जो एलिमेंट्स अलग अलग पैटर्न्स आपको अलग अलग हिस्से में देखने को मिल रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट दैट डैश, बीच में आपको ट्राई स्टार हाईलाइट्स के साथ एक ऑफ वाइट इंसर्ट है, उसके नीचे आप दूसरा मटेरियल है. सो ओवरऑल इट फील्स नाइस, स्पोर्टी. स्टीयरिंग व्हील भी आपको छोटा कॉम्पैक्ट सा मिलेगा, फ्लैट बॉटम है. एंड देन यू हैव क्रूज कंट्रोल का कंट्रोल ओवर हियर एंड ऑडियो कंट्रोल्स इधर. इसके अलावा जो स्क्रीन है वो छोटा आपको मिलेगा. ऑब्वियसली दिस इज नॉट 10.25 बिकॉज दैट्स सेगमेंट्स बेस्ट स्पेक्स अगर हम बात करें सोनेट के सिस्टम की. और इस स्क्रीन में एक और फ़र्क आपको देखने को मिलेगा विच इज़ द आयरा विच टाटा व्हीकल्स हैव. और अगर सोनेट की बात करें उसमें ऑब्वियसली यूओ है, दैट हैज़ मोर कनेक्टिविटी फीचर्स. इसके नीचे एसी वेंट्स स्टाइलिश अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे. एंड इसके नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल का बटन्स और नॉब्स देखने को मिलेंगे. दे आर नाइस टू टच, सॉलिड फील आपको देते हैं. सामान रखने के नीचे आपको जगह है, USB पॉइंट. जो यूनिक चीज़ है नेक्सॉन में दैट इज़ द ड्राइव मोड सिटी इको स्पोर्ट. आप ये यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपको याद होगा जे इलाकास में जिस तरह से होता है उस तरह से ऑब्वियसली नीचे से पॉप तो नहीं करती है, बट या दिस हैज़ वन क्वर्की एलिमेंट, वो अच्छा लगता है. आई एम नॉट श्योर कि डेली ड्राइव में आप लोग इसे यूज़ करते हैं कि नहीं. सो इन केस एनी नेक्सॉन व्यूअर हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लेट अस नो कमेंट सेक्शन में कि हाउ यूज़फुल या हाउ फ्रीक्वेंटली यू यूज़ दिस, चेंज दिस सेटिंग. यहाँ पर एयर प्योरीफायर का ऑप्शन दिया गया है. एंड देन यू हैव स्पेस जो ज़्यादा है. ऑब्वियसली अगर हम आर्मरेस्ट के नीचे की बात करें तो आपको सोनेट से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर जगह मिलेगी. बट कप होल्डर्स और बाकी बॉटल होल्डर्स की अगर बात करें, वहाँ पर सोनेट में स्पेस वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है. बट या अगेन यहाँ पर बड़े बॉटल्स और अम्ब्रेला होल्डर्स भी इसमें आपको देखने को मिले जस्ट लाइक सोनेट. बट बीच में जैसे मैंने बताया कप होल्डर्स वगैरह की जगह अगर कंपेयर करें थोड़ी सी ज़्यादा आपको सोनेट में देखने को मिलेगी. सीट्स कंफर्टेबल, नाइस. अगेन मैनुअली इसको आप हाइट इसको एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक सोनेट. एंड यू डोंट गेट द वेंटिलेटेड सीट्स. तो वो एक बड़ा फीचर है जो आई गेस सोनेट जिसमें स्कोर आगे कर रही है. सनरूफ इसमें भी आपको मिलेगा. द क्वालिटी, द साइज़ थोड़ा सा आपको कम एयरी लगेगा अगर हम बात करें सोनेट की. बट ओवरऑल दिस इज़ काइंड ऑफ लोडेड. एंड डे टू डे लाइफ में जो आपको फीचर्स की ज़रूरत होती है, मेरे ख्याल से वेंटिलेटेड सीट्स एक वैसा फीचर ज़रूर होगा. अदरवाइज दिस कम्पीट्स विद सोनेट दैट वेज, लुक के हिसाब से भी और फीचर्स के हिसाब से भी. थोड़ी सी ज़्यादा आपको वाइड ये लगेगी सोनेट से. बट ये जो बीच का हिस्सा है दैट आई गेस थोड़ा सा क्राउडेड आपको ज़्यादा लगेगा सोनेट के मुकाबले. बट अगेन दैट्स सब्जेक्टिव. इफ़ यू लाइक दिस लुक, वहाँ पर यू विल एंजॉय दिस. एंड एज यू गेस्ट, अब सेकेंड रो में बैठ कर देखता हूँ कि सोनेट और नेक्सॉन में से
ज़्यादा कंफर्टेबल डे टू डे लाइफ के लिए मुझे कौन सी लगती है इन दोनों छोटी एसयूवीज़ में। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ टाटा नेक्सॉन। और यहाँ स्पेस के मामले में इंटरेस्टिंगली काफ़ी क्लोज अगेन ये सोनेट और नेक्सॉन मुझे लग रही है। नी रूम मेरे हाइट के लिए आपको तो ऑब्वियसली कम रहेगा, बट यहाँ हेड रूम थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थोड़ी कम है हेड रूम इफ़ यू कंपेयर विद सोनेट। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, मेरी हाइट के हिसाब से। यहाँ पाँव के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह है, थाई सपोर्ट इसमें कहीं ज़्यादा बेटर है, बैक एंगल इज़ ऑल्सो नाइस। सो ओवरऑल कंफर्ट और कुशनिंग के हिसाब से तो मुझे सीट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जो नीचे पाँव के लिए थोड़ी स्पेस है वो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूर लगेगी, बट हेड रूम अगेन प्रीटी क्लोज। यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिया जा रहा है, बॉटल रखने के लिए आपको जगह मिल रही है। इट इज़ वेरी टफ। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी मुश्किल होगी इन दोनों के बीच में इन सारे फीचर्स के ऊपर कंपेयर करने में, बट आई गेस दे आर प्रीटी क्लोज। And now let's talk about that space जो हमेशा हम लोग यूज़ ना करें, but at the same time it is very practical as far as the decision making is concerned, और वो है luggage space, किस में आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं। If we talk about Nexon, यहाँ पर around 350 लीटर्स की जगह आपको इसमें मिलेगी। बड़े लगेज आप इसमें आराम से रख सकते हैं, no doubt, but Sonet it has an advantage of around 42 लीटर्स। ये 392 लीटर्स की जगह आपको Sonet में देखने को मिल रही है, तो इस वाले फ्रंट के ऊपर Sonet ने बाजी मारी। Guys, now is that part where we ask one question and answer it as well. बिंदु कहाँ विश्राम करती है? If we talk about the looks, काफी क्लोज मुझे लगे। List of features, Sonet थोड़ी बाजी मारती नजर आई। Space, comfort के हिसाब से very close. Rear seat, I guess Nexon थोड़ी सी better मुझे comfort के हिसाब से लगी। Headroom के मामले में लेकिन वहाँ पर हल्का सा नंबर उसका घटा if we compare it with this Sonet. इसके अलावा ड्राइव, the drive was again pretty interesting because initial में Sonet ज़्यादा exciting लगी, mid range में मुझे Nexon ज़्यादा अच्छी लगी। Coming back to the same question, बिंदु कहाँ विश्राम करते हैं? यहाँ पर अगर हम डेली लाइफ कहें इन दोनों के साथ कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बेटर होगी, आई गेस वहाँ हल्के मार्जिन से Sonet मुझे बेहतर नज़र आ रही है। If you want to live with this, if you're planning to live with this, one of these cars, यहाँ पर बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में तो हमने बता ही दिया। एक बड़ी वजह मुझे लग रही है रिफाइनमेंट की भी। If टॉक अबाउट द ड्राइव, डेली ड्राइव, वहाँ पे जो रिफाइनमेंट लेवल है Sonet का वो आपको ज़्यादा आरामदेह रहेगा अगर आप लंबे टाइम तक ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ी सी गुंजाइश रिफाइनमेंट की अभी भी बची हुई है Nexon में। सो ओवरऑल काफ़ी क्लोज ये मामला रहा है, बट माय चॉइस ऑब्वियसली जो आप डेली घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे कंफर्ट के हिसाब से देखें तो मैंने डिसाइड किया। इन केस यू डू नॉट अग्री विद इट, कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट डू यू फील अबाउट दीज टू कार्स, वो भी हमें बताइए। इन केस आई मिस्ड आउट ऑन एनी एस्पेक्ट, प्लीज़ लेट अस नो, वो भी हम फॉलोअप स्टोरीज में ज़रूर आपको क्लैरिफाई करेंगे या बताएंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सी और बातें हैं जो शायद छूट गई हैं। फिलहाल आप ऐसा कीजिए, इस वीडियो के बाद प्राइम साहिब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। बाय बाय।